Hello children, today we are going to study Unit 7 Topsy-Turvy Land. Let us start. Have you ever thrown your school bag on your bed? Have you ever left your shoes and socks here and there? Have you ever played with your ball in your room? Does your room sometimes look like this? Let us read once again. Have you ever thrown your school bag on your bed? Have you ever left your shoes and socks here and there? Have you ever played with your ball in your room? Does your room sometimes look like this? नहीं, आपका कमरा तो बहुत सुंदर दिखाई देता होगा। चलिए इसे एक बार हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। Have you ever thrown your school bag on your bed? क्या आपने कभी अपना स्कूल का बस्ता बिस्तर पर ऐसे ही फेंका है? Have you ever left your shoes and socks here and there? क्या आपने अपने जूते और जुराबें यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंकी हैं? Have you ever played with your ball in your room? क्या तुम अपनी गेंद के साथ कमरे में खेलते हो? Does your room sometimes look like this? क्या तुम्हारा कमरा कभी ऐसा दिखाई देता है? नहीं, आपका कमरा तो बहुत सुंदर होगा और बिल्कुल व्यवस्थित होगा, सेटल्ड होगा। Now read about one such upside down land. Let us start reading the poem. The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. And buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. You pay for what you never get. I think it must be grand, for when you go you are coming back in topsy-turvy land. It is written by H.E. Wilkinson. Let's read it again. The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. And buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. You pay for what you never get. I think it must be grand, for when you go you are coming back in topsy-turvy land. चलिए अब इस कविता को एक बार हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in the topsy-turvy land. The people walk upon their heads. यहाँ लोग सिर के बल चलते हैं, पाँव के बल नहीं, जैसे कि हम चलते हैं। The sea is made of sand. और जो समुद्र है वो पानी से बना नहीं है, यहाँ का समुद्र रेत ही रेत से भरा है। The children go to school by night in topsy-turvy land. और इस उल्टी पुल्टी दुनिया में बच्चे दिन में नहीं रात में स्कूल जाते हैं। सोचो तो उन्हें कैसा लगता होगा, है ना? बड़ी अजीब बात। ये सब कुछ होता है टॉप्सी-टर्वी लैंड में। The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. The front door step is at the back. जो मुख्य द्वार की पहली सीढ़ी होती है वो भी घर के पिछले हिस्से में है। You are walking when you stand. और जब हम खड़े हैं असल में हम चल रहे हैं। You wear your hat upon your feet
इन टॉपसी टर्वी लैंड। और टॉपसी टर्वी लैंड, इस उलट पुलट दुनिया में जो हैट है वो सर पर नहीं पांव पर पहनी जाती है। कितनी मजेदार बात है। हम तो हैट सिर पर पहनते हैं। मुख्य द्वार कहाँ होता है हमारे यहाँ? घर के सामने की ओर। और जब हम खड़े होते हैं तो हम चल नहीं रहे होते, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है सब कुछ। एंड buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. And buses on the sea you will meet, और तुम्हें समुद्र पर चलती हुई बसेस मिल जाएंगी। यहाँ बसें कहाँ चलती हैं? समुद्र पर, भूमि पर नहीं, जमीन पर नहीं। While pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land, और जो यहाँ की किश्तियाँ हैं वो कहाँ चलने के लिए बनाई गई हैं? टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, गलियों में ऊपर और नीचे जाने के लिए बनी है। कहाँ? टॉपसी टर्वी लैंड में। यहाँ सब कुछ ही उल्टा पुल्टा हो रहा है। बहुत गजब की बात है। यू पे फॉर वट यू नेवर गेट, आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी टर्वी लैंड। यू पे फॉर वट यू नेवर गेट, आप जिस चीज के लिए कीमत अदा करते हो, कीमत देते हो, वो आपको असल में मिलती ही नहीं है। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, ये बहुत ही बड़ी मजेदार बात है। फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक, कि जब आप जा रहे हैं असल में आप वापिस आ रहे हैं। फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी टर्वी लैंड। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? ये सब कुछ टॉपसी टर्वी लैंड में हो रहा है। उल्टी पुल्टी दुनिया में हो रहा है। बड़ी अजीब दुनिया है ये, हमसे बहुत ही अलग, हमसे बहुत ही भिन्न। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान से देखिएगा। जो कविता टॉपसी टर्वी लैंड हमने अभी पढ़ी, उसी कविता पर आधारित, उसी पोम पर आधारित कुछ एक्सरसाइजेस यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। देखें पहला प्रश्न क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम टॉपसी टर्वी लैंड एंड फिल द ब्लैंक्स, यूज योर टेक्स्ट बुक। इस क्वेश्चन में आपको पोयम की पहली 4 पंक्तियां दी गई हैं और उनमें कुछ ब्लैंक्स रखे गए हैं। आपको अपनी पुस्तक खोलनी है और पुस्तक में इन ब्लैंक्स में क्या शब्द आएंगे उन शब्दों को ढूंढकर यहाँ भरकर अपनी कॉपी में नोट करना है। जब आप नोट कर लेंगे तो ये चारों लाइंस पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज रीड द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम टॉपसी टर्वी लैंड एंड करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएम। इस क्वेश्चन में सेकंड स्टैंजा लिया गया है पोएम से और उसमें जो पंक्तियां हैं उन्हें ऊपर नीचे कर दिया गया है। इस प्रकार से बदल दिया गया है कि अब यह उस क्रम में नहीं है जिस क्रम में पुस्तक में लिखी गई थी। आपको क्या करना है, आपको इन पंक्तियों को पुस्तक के स्टैंजा 2 को पढ़ने के बाद सीक्वेंस में लगाना है, क्रम में लगाना है और क्रम में लगाकर अपनी नोटबुक में लिखना है। इस प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम टॉपसी टर्वी लैंड। इसमें थर्ड स्टैंजा को लिया गया है और इसमें आपको क्या क्या कार्य करना है। आपको इसमें देखेंगे कि जो थर्ड स्टैंजा है उसके हिसाब से वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया गया है। हर लाइन में, हर पंक्ति में वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया गया है। उन वर्ड्स को आपको पुस्तक के हिसाब से सही क्रम में रखना है और जब ये शब्द सही क्रम में हो जाएंगे तो ये पंक्ति पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार आपको सभी पंक्तियों को सही क्रम में शब्दों को लगाकर पूरा करना है और पूरा करने के पश्चात आप इसे अपनी कॉपी में सही से नोट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इट सेज ओपन योर बुक, रीड द फोर्थ स्टैंजा ऑफ पोएम टॉपसी टर्वी लैंड एंड करेक्ट ऑल द मिसस्पेल्ड वर्ड्स। यहाँ पोएम से चौथा स्टैंजा लिया गया है और इस स्टैंजा में कुछ शब्दों को मिसस्पेल्ड कर दिया गया है, उनकी स्पेलिंग गलत कर दी गई है। आपको पुस्तक में उन सही स्पेलिंग्स को देखकर यहाँ उन स्पेलिंग्स को ठीक करना है और ठीक करने के पश्चात चारों पंक्तियों को, चारों लाइंस को अपनी कॉपी में नोट करना है। इस प्रकार से आप अपने चारों क्वेश्चंस को पूरी अच्छे साफ सुथरा लिखकर अपनी कॉपी में पूरा करें और अपने अध्यापक को भेज दें ताकि वो चेक करके आपको बता सके कि आपने सही से कार्य किया है या अभी कोई सुधार की गुंजाइश है। थैंक यू फॉर नाउ। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।